सो 2021 के बाद इरफान पठान सर की एंट्री होती है एज अ कोच जम्मू एंड कश्मीर No, no, कोच और क्या मेंटोर। no, no. हाँ He was before 2021. ओके, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जब वो आए थे उसके बाद भी काफ़ी चेंजेस आने शुरू हो गए थे क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे इलाके से प्लेयरों को देखा, वहाँ जाके चूज करे और उनको चांस दिया। How far that is true, I am not very sure. हम्म क्योंकि जो हैं प्लेयर सामने ही हैं, कितने हम्म उसमें से रिमोट के हैं, यू कैन मेक आउट दे हार्डली एनीबॉडी फ्रॉम रिमोट एरियाज. ओके, ओके. सो चलो उसके दी बाद के बारे में बात करते हैं। नहीं, बट इरफान पठान's contribution cannot be down underplayed. He ओके। also has contributed. हम्म But my question to them is everybody, हम्म even Vishen Singh Bedi has contributed. ओके। You know, he also, they all tried to give suggestions to the association, अच्छा। but the association at that time didn't implement them. That's why progress didn't take place. हम्म Suggestions came, हम्म they came with good intention, हम्म but they left unhappy because the association did not cooperate with them. The association ओ, did not incorporate those changes which they wanted. Because even Vishen Singh Bedi didn't want any uh, प्लेयर। Sifarshbazi. हम्म Neither this fellow wanted Pathan. हम्म But then the association continued its own ways. This quota system, कितने जम्मू से खेलेंगे, कितने कश्मीर से खेलेंगे, ये और this is what actually was spoiling our cricket. सर ये वाली चीज़ भी बहुत होती थी पहले कि ज़्यादातर प्लेयर कश्मीर से ही होते थे और जम्मू से कम होते थे। ये था, this was a fact. You ask our players, आप जम्मू के प्लेयर से पूछे, वो कहते हैं कि हमने अपने करियर के अंदर बहुत ज्यादा मैचेस खेले होते अगर इस प्रकार की बातें ना हो रही होती. It's unfair to them. तो ये पॉलिटिकल प्रेशर या Whatever कुछ it may ऐसा be, है। I would, as I said, I won't comment on what happened in the past. हम्म Because if we start doing that, then whole podcast will be based on that. So we can एग्जैक्टली। only now look toward the future. हम्म Okay. And future also this, we have achieved one thing, we have won Ranji Trophy. But हम्म then thereafter, to stay at the top is not easy. हम्म We have to ensure, we have to work harder, much harder नो to ensure, नो because डाउट। it's, equally easy to fall हम्म as it is difficult to rise. हम्म Okay, so you can fall also very easily once you're on the हम्म top. One just push is required. हम्म Okay, so to ensure that we remain on the top, we have to work very hard. हम्म That is one thing. Secondly, it's not only Ranji Trophy, there are other age groups also. Actually, incidentally, this year started very good for us. Our under 16 team also won the national trophy. ओ Okay, that is here. You can see this. ओके विजय दिस वन। This one, yeah. ओके So, ठीक। and ended with the seniors winning the national trophy. हम्म Okay, so that means we have potential. So we have to now ensure our concentrate more and focus more on our age group teams. ओके। See, we as you're aware, the audience may be also knowing हम्म that on the men we have under 16, under 19, under 23, and seniors. ओ यू हैव फोर पूल, Four types of teams. फोर टाइप्स ऑफ टीम्स। In the women we have under 15, under 19, under 23, and senior. ओके। Now in the men play three tournaments in a year. हम्म Ranji Trophy, which is a red ball tournament, यस multi days. विजय। Then Vijay Hazare, which is one day tournament, हम्म and Shahid Mustaqil, which is T20 tournament. या Age group tournament, there is no T20 because BCCI does not encourage, you know, T20। T20 format because more of Like an what is the entertainment. reason? The reason is that the purest form of cricket is multi days, Ranji Test। हाँ। test. If you start encouraging youngsters also to play T20, हम्म they will not look towards the red ball at all. हम्म So to make them play the red ball, because ultimately otherwise the pool for the Ranji will die. हम्म So to ensure that they concentrate more on red ball हम्म and less on white ball, हम्म the T20, हम्म the shortest format, is not allowed for the age groups. ओके Okay, for the age groups you have one day and multi days only. ओके ओके। टेल मी सर, व्हाट अबाउट वुमेन क्रिकेट टीम, क्योंकि उन्होंने का कैसा परफॉर्मेंस रही है ठीक, हमारी वुमेन टीम 2 बार क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है किस टूर्नामेंट पे? सीनियर्स वनडे टूर्नामेंट सीनियर्स। में. ओके, विजय हजारिया। नहीं, वनडे उनका लड़कियों का अलग होता है, उनके लड़कियों का लिए. अलग होता है। हाँ, उनका वुमेन का अलग होता है. ओके, देखिए, हमने यहाँ पे वुमेन क्रिकेट के लिए बहुत चेंजेस लाए हैं. क्या क्या चेंजेस? सबसे पहले आप हैरान होंगे कि वुमेन क्रिकेट जो हमारी टीम्स थी उनको यूनिफॉर्म्स भी जो पुरानी यूनिफॉर्म दी जाती थी. हमने कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखी है मेन और वुमेन टीम में. इक्वल उनको इक्वल अलाउंसेस, इक्वल फैसिलिटीज, एवरीथिंग इक्वल. उनको सेम होटल में ठहरते हैं जहाँ पे
मेंस टीम ठहरती हैं, हुँ, उनको सेम अलाउंसेस मिलते हैं, उनको हुँ, सेम खाना मिलता है, उनको सेम ट्रैवल मिलता है, हुँ, उनके लिए वही कोचेस वही वैसे किए जाते हैं जैसे मेन टीम के लिए किए जाते हैं। हुँ, कोई किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो हुँ। सबसे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन ये थी कि उनको सेंट्रल क्रिकेट में खेलना अलाउड नहीं था। क्यों? अब मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ, कौन दे सकता है इसका जवाब? जो पहले थे यहाँ पे, ठीक है? अच्छा। तो ये चीज़ें हमें तो मालूम नहीं है, तो लड़कियों से पता लगी, वो बता दें कि हमें सेंट्रल क्रिकेट में खेलने नहीं दिया जाता था। तो अभी हम ना उनका सेंट्रल क्रिकेट में खेलने की सेंट्रल क्रिकेट में भी खेलते हैं, हम उनके लिए उतने ही कैंप लगाते हैं जितने कि लड़कों के लिए लगते हैं, इक्वल हुँ, नंबर ऑफ कैंप्स। हुँ, हर किस्म की फैसिलिटीज हमने दी है और उससे विमेन क्रिकेट में काफ़ी बूस्ट आई है हमारे। अच्छा है। और अब मुझे लगता है कि एक थोड़ा बहुत अभी है कि हमारी इतनी ज़्यादा लड़कियां खेल नहीं रही हैं। यही सवाल था मेरा अगला कि हाँ, हम जम्मू कश्मीर जैसे शहरों से आते हैं, छोटे-छोटे शहर हैं यहाँ पे, तो यहाँ की जो गर्ल्स हैं या वुमेन्स हैं जो, उनमें है इंटरेस्ट, इतना ज़्यादा टैलेंट इन है? टैलेंट टैलेंट जो भी आई हैं वो टैलेंटेड है ही हैं, हुँ, लेकिन इंटरेस्ट मेरे को लगता है पेरेंट्स का इंटरेस्ट क्या क्या उनका? थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे अभी भी पेरेंट्स का रुझाव उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। लेकिन ये रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा, इस बार की टैलेंटेड ट्रायल में काफ़ी बच्ची आई लड़कियां आई हैं, ओके, ठीक है, उससे फ़र्क पड़ा है। अच्छा, और एक चीज़ जो हमें थोड़ा तंग कर रही है वो ये है कि जो सेशन चेंज हुई है, कश्मीर में विंटर सेशन कर दिया है इन्होंने। अच्छा, पहले तो थे कि सारे मार्च में होंगे, हुँ, अब इन्होंने विंटर सेशन अलग से शुरू कर दिए वो। तो उससे क्या हो रहा है कि वो वही टाइम होता है अक्टूबर से दिसंबर का जब नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं। हुँ, तो कई बच्चे खासकर छोटे बच्चे जो है ना, वो एग्ज़ैक्ट पढ़ाई के करके वो विड्रॉ कर पार्टिसिपेट देते हैं। हाँ, पार्टिसिपेट तो करते हैं, एंड में विड्रॉ कर जाते हैं जब अच्छा। टूर्नामेंट वगैरह में जाना होता है, वो विड्रॉ कर जाते तो हैं। उनके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया नहीं होगा? कॉलेज, स्कूल वाले नहीं देते होना क्या? चाहिए ना, पर ऐसा नहीं है। या तो गवर्नमेंट को कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए, हुँ, अगर किसी नेशनल टूर्नामेंट में खेलने जा रहे हैं तो वो एग्जाम माफ कर दिया जाएगा या बाद में मौका दिया जाएगा। क्योंकि वो कुछ रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं स्कूल को भी रिप्रेजेंट और स्टेट को भी जेट को होता रिप्रेजेंट है। करना यस, है, तो ये कुछ करना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम है, ये रिसेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक लास्ट ईयर तक तो मार्च तक था तो प्रॉब्लम नहीं आती थी। दोनों सीजन दोनों जम्मू और वो क्या बोलते हैं यहाँ पे विंटर विंटर एंड समर ज़ोन्स। समर जोन हुँ, सब में मार्च हो गया था, पर हुँ, अभी ये फिर चेंज किया है इन्होंने, उससे थोड़ा बहुत फर्क आया है। ये ओके, मैं नोटिस में लाया है चीफ मिनिस्टर साहब के, ओके। शायद वो कुछ